આ જ્યારે વાત તમને કહી રહી છું ને ત્યારે અરેરાટી ઉપજે એવી એક ઘટના આપને બતાવવા જઈ રહી છું. અત્યારે હાલ મેઘાણીનગર વિસ્તાર અહીંયા લાગુ પડે છે. નીચે જે રેલવે ટ્રેક છે ત્યાં અત્યારે હાલ Z+ ન્યૂઝની ટીમ આવી છે. આપણે જ્યારે કહેતા હોઈએ ને કે સબ સલામત હૈ, મહિલાઓ એકદમ સલામત છે, એ દાવાઓ ક્યાં પુરવાર થઈ રહ્યા છે. અત્યારે હાલ આપ જે ડેડ બોડી જોઈ રહ્યા છો, 15 થી 20 વર્ષની આશરાની આ મહિલા છે, યુવતી છે. મેમ્પો વિસ્તાર છે આ. જે પ્રમાણે આપ જોઈ રહ્યા છો તે પ્રમાણે જ્વલનશીલ પદાર્થથી આ મહિલાને આગ લગાડી દેવામાં આવી છે. ગઈકાલ રાતની આ ઘટના છે. એક મહિલા તરીકે જ્યારે એમ કહેતી હોઉં કે મારું ગુજરાત સલામત છે, ત્યારે આવી જે ઘટનાઓ છે ને એ મને પ્રિયંકા રેડ્ડીની યાદ અપાવે છે, કે જે હૈદરાબાદની રહેવાસી હતી, કે જે મહિલા જ્યારે રાત્રે પોતાની ડ્યુટી પૂર્ણ કરીને પાછી આવતી હતી, એવા સમયે તેની સાથે આ ઘટના થઈ હતી. જે પ્રમાણે આપ જોઈ રહ્યા છો તે પ્રમાણે રેલવે ટ્રેક ઉપર લોકોના ટોળા ઉમટી પડ્યા છે, કે જે જગ્યાની આ મહિલા હતી, 15 થી 20 વર્ષના આશરાની આ મહિલા હતી. જે પ્રમાણે આપ મૃતદેહ જોઈ શકો છો તે પ્રમાણે યુવતી તદ્દન નિર્વસ્ત્ર હતી જ્યારે તેને આગ લગાડવામાં આવી, કારણ કે આસપાસ કશું દેખાતું નથી. જે પ્રમાણે કપડાં, જે આરોપી હતો તેનો પ્રયાસ ક્યાં નિષ્ફળ થયો? તેનો પ્રયાસ ત્યાં નિષ્ફળ થયો કે ડેડ બોડી પૂરી સળગી નથી, અને એ પહેલાં જ જાણ કરી દેવામાં આવી હતી પોલીસને. પોલીસ તરત ઘટના સ્થળે આવી ગયા હતા. જે પ્રમાણે અત્યારે હાલ વાત થઈ રહી છે, જે પ્રમાણે અત્યારે હાલ આપ જોઈ રહ્યા છો કે હું પણ બહુ મુશ્કેલીથી આ જગ્યાએ પહોંચી છું, કારણ કે અત્યારે હાલ જે પ્રમાણે આપ જોઈ રહ્યા છો તે પ્રમાણે પોલીસ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. પરંતુ સબ સલામતના દાવા ક્યાંક ને ક્યાંક અહીં પોકળ સાબિત થઈ રહ્યા છે. પોલીસની કામગીરી નો ડાઉટ બહુ જ સારી છે, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક એવું લાગી રહ્યું છે કે જે આરોપી છે તેને ખુલ્લો દોર મળી ગયો છે. આની સાથે સાથે બીજી વાત એ કે અત્યારે હાલ જે મહિલા છે જેની ડેડ બોડી મળી આવી છે, કોવિડના કારણે બધી જ એમ્બ્યુલન્સ અત્યારે હાલ વ્યસ્ત છે. જે પ્રમાણે આપ જોઈ રહ્યા છો તે પ્રમાણે લોકોના ટોળા અહીંયા ઉમટી પડ્યા છે. આપણે લોકો પાસે લઈ જઈશ, જે લોકો અહીંના રહેવાસી છે તેમને પૂછવા માંગીશ કે અત્યારે હાલ આપે શું ઘટના જોઈ અત્યારે હાલ જે પ્રમાણે છે. એકચ્યુઅલી તો અમે હજી સુધી કોઈ બોડી એવું કશું જોયું નથી, તો અમને પણ ખ્યાલ નથી કે એકચ્યુઅલી શું ઘટના થઈ છે અહીંયા. હજી અત્યારે અહીંયા ભીડભાડ જોઈ, પોલીસ જોઈ તો ખબર પડી કે અહીંયા કંઈ ઘટના એવી બની છે. જી બિલકુલ. અત્યારે હાલ શું કામ અહીંયા ક્યાંયથી કોઈ છોકરી ગાયબ થઈ હોય, કોઈ યુવતી ગાયબ થઈ હોય એવું કશું આપના ધ્યાનમાં છે? અમારે અહીંયા જે ચાલી છે રેગાવલી, અમારી એવી કોઈ છોકરી ગાયબ કે એવું કશું થયું નથી. ઓકે, આપનું નામ જણાવશો? સર, અત્યારે હાલ આપે જે ડેડ બોડી જોઈ છે, આપણે તો જોયું નહીં, અત્યારે જ આવ્યા. બરાબર. આ એવી વસ્તુ છે. એક બીજા મહત્વના વ્યક્તિને પૂછવા માંગીશ. એક્સક્યુઝ મી સર, આપનું નામ જણાવશો? મોટા ભાઈ છે. આપનું નામ જણાવશો? લાલાભાઈ રમુભાઈ પટેલ. લાલાભાઈ, આપે ડેડ બોડી જોઈ હતી? ના, અમે નહીં જોઈ. અમે બેન 4-5 દિવસથી ગામડા હતા, બરાબર. હું અત્યારે આવ્યો તો આ બધી વાતો થઈ તો મેં સાંભળી, તો બરાબર. એના પછી હું અહીંયા કરીને આવ્યો. મેં જોયું તો છોકરાએ મને કીધું કે મને ક્યાં રામ છે, રામ છે, રામ છે. તો હું અહીંયા કરીને આવી અને આપણે એવું જાણ્યું કે આ છોકરીના બી હત્યા થઈ છે, બરાબર. આપણે જાણતા નથી. ઓકે, જે પ્રમાણે અત્યારે હાલ આપણે લોકોને પૂછવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ અત્યારે હાલ આ જ વસ્તુ છે કે લોકો ટોળા વળશે, પરંતુ હા કોઈ વ્યક્તિ એટલી તસદી નહીં લે કે આ યુવતી કોણ હતી, ક્યાંથી આવી હતી, કોની સાથે આવી હતી. આસપાસના દુકાનોના સીસીટીવી ફૂટેજ અત્યારે હાલ શોધવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ છે કે સીસીટીવી ફૂટેજમાં જો તે યુવતી અહીંયાની નહોતી, કારણ કે જે પ્રમાણે આપણે પૂછ્યું ચાલ્યુંમાં કે શું ત્યાંથી કોઈ યુવતી ગાયબ થઈ હતી, તો ત્યાંથી જવાબ મળે છે ના, જો અહીંયાથી યુવતી નથી આવી તો યુવતી ડેફિનેટલી ક્યાંક બહારથી આવી છે. તો એ માટે સીસીટીવી ફૂટેજ કામગીરી ચાલી રહી છે. જે પ્રમાણે અત્યારે હાલ આપ જોઈ રહ્યા છો તે પ્રમાણે મેમ્પો વિસ્તાર રેલવે ટ્રેક છે. આ પોલીસની કામગીરી જોઈ રહ્યા છો જે સરાહનીય તો છે.
પોલીસને જ્યારે કોલ મળ્યો પોલીસ તરત જ હરકતમાં આવી ગઈ હતી અને કામે લાગી ગયા હતા. અત્યારે હાલ જે પ્રમાણે આપ જોઈ રહ્યા છો તે પ્રમાણે પોલીસ પોતાની કાર્યવાહી કરી રહી છે, પૂછપરછ કરી રહી છે કે આ યુવતી ક્યાંથી આવી હતી. સીસીટીવી કેમેરા અત્યારે હાલ શોધવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ રહી છે. being a મહિલા ઇસ્યુ બની રહ્યા છે. દૂર દૂર સુધી બધા જ લોકો જે પ્રમાણે જોવા ઉપસ્થિત થઈ ગયા છે કે અત્યારે શું ઘટના ઘટી છે. પરંતુ વિચારો કે આ મહિલા, આ યુવતી કોઈકની બહેન હતી, કોઈકની દીકરી હતી, કોકની આંખોનું રતન હતી, જે યુવતીની અત્યારે હાલ આ દશા થઈ છે. આ ઘટના જોઉં છું ને પ્રિયંકા રેડ્ડી મગજમાં આવે છે કે જેની હત્યા આ જ પ્રકારે કરવામાં આવી હતી, જેમાં રેપ કરવામાં આવ્યો હતો, રેપ નહીં ગેંગરેપ કરવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ તેની આગ લગાડીને હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી. આ જોઉં ને તો એક વસ્તુ એ લાગી કે અત્યારે હાલ જે પ્રમાણે આપણે કહીએ ને કે મહિલાઓ સુરક્ષિત છે ગુજરાતમાં, પણ ના, મહિલાઓ સુરક્ષિત નથી. આવી ઘટના જોઉં છું ને ત્યારે આ વસ્તુ મને લાગે છે કે ના, મહિલાઓ સુરક્ષિત નથી. જે પ્રમાણે અત્યારે હાલ આવા ઇન્સિડન્ટ થયા છે. NGO ખુશી યાદવ પૂછી રહ્યા છે કે એ NGO ક્યાં છે જે મહિલાઓનું વર્ક કરતી હોય છે, મહિલાઓ માટે કામ કરતી હોય છે. આવી બધી ઘટનાઓ જ્યારે જોઈએ છે ને ત્યારે સવાલ ક્વેશ્ચન માર્ક ઊભો થાય છે કે શા માટે આવી ઘટનાઓ ઘટતી હોય છે કે જેમાં એક યુવતીનો ભોગ लेवाता હોય છે. जहाँ एक तरफ बात हो रही है सुरक्षा की कि हमारे देश में बेटियां सुरक्षित हैं, हम महिला दिवस मना रहे हैं, पुलिस है, स्पेशल हेल्पलाइन नंबर्स बने हैं महिलाओं के लिए, इतनी सारी सुरक्षा, इतने सारे NGOs, इतना सब होने के बावजूद यहाँ पर हर गली, हर शहर में, हर नुक्कड़ के पास में, हर रेलवे ट्रैक पर, हर सड़क के किनारे आपको बच्चियों के साथ रेप जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं. ऐसा ही कुछ हमारे यहाँ पे पास में जो इंसिडेंट हुआ है, बच्ची को जैसे आपने प्रियंका रेड्डी जी का केस सुना था, सेम वैसा ही केस यहाँ पर के रेप करने के बाद में, और लड़की की उम्र 14 से 15 साल. आप समझ सकते हैं कि इंसानियत किस हद तक गिर चुकी है. यहाँ ना कोई मीडिया है, ना पुलिस की बहुत ज़्यादा मदद है. लाश 5 से 6 घंटे तक पड़ी रहती है. अब ये समझिए, इंसानों से पहले लाश के पास कुत्ते पहुंच जाते हैं, तो हम इंसानों की, हम बच्चियों की, औरतों की क्या वैल्यू है, क्या इस देश में हमारी बच्चियों की जो सुरक्षा और उनकी अहमियत, उस बच्ची का वजूद क्या है, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है. इसी दौरान सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी मीडिया जो यहाँ पर मदद के रूप में आकर खड़ी होती है. मैं उसी इंसिडेंट को आप लोगों के सामने ત્યારે મહિલા હોવાના નાતે મને ડર લાગે છે એટલા માટે કે 15 થી 20 વર્ષની આ યુવતી જ્યારે પોતાના ઘરની બાળક હતી, માતા હતી, દીકરી હતી, આ બધા જ સંબંધો ત્યારે મૃતપાય થઈ ગયા કે જ્યારે આ યુવતી મૃત હાલતમાં મળી આવી. આવી ઘટના જોઈને તો મને પ્રિયંકા રેડ્ડી યાદ આવી ગઈ કે જે હૈદરાબાદની હતી, જેની સાથે આવી ઘટના ઘટી હતી. રેપ થયો હતો, રેપ નહીં એની પર ગેંગરેપ થયો હતો અને ત્યારબાદ તેને આ રીતે જ્વલનશીલ પદાર્થોથી તેને સળગાવી દેવામાં આવી. આજે 15 થી 20 વર્ષની આ યુવતી અમદાવાદનો મેઘાણીનગર એરિયા, આ જે એરિયા છે ને તે પોલીસ સ્ટેશનથી તો નજીક છે, પરંતુ સાથે સાથે એકદમ અવાવરૂ એરિયા છે. કેટલાક લોકો અહીંયા વસવાટ કરે છે, બાકી આમ છતાં એકદમ અવાવરૂ એરિયા છે કે જ્યાં કોઈ પણ જાતની હલનચલન કોઈ જ લોકો જોઈ શકતા નથી. રાતના અંધકારમાં ગઈકાલ રાતની આ घटना છે. प्रीति जी, मैं आप ही के लाइव में आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि आप सबसे पहले, जहां बात की जा रही है कि हमारे देश में मीडिया इतनी एक्टिव है, इतना सब कुछ है हमारे पास में, स्टिल आपके सिवा यहाँ पर कोई भी नहीं, और ये जो इंसिडेंट हुआ है ये इतनी पास में हुआ है जहाँ पर लोग रह रहे हैं. रात को भी यहाँ पे जो मील चल रही है, यहाँ पे सामने देख सकते हो, यहाँ पे रात को भी एक्टिव था. तो
मतलब जो प्रियंका जी का जो आपने जिक्र किया है अभी कि उनके साथ गैंग रेप हुआ, तो यही सेम इंसिडेंट यहाँ पे, क्योंकि सिंगल व्यक्ति जला नहीं सकता है जी, इतनी दूर लाकर एक लाश को फेंकना और इस तरह का अंजाम देना, तो क्या आपको भी यही लग रहा है कि गैंग रेप जैसा इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है? જી બિલકુલ જે પ્રમાણે આ યુવતીની ડેડ બોડી જોઈ છે તેના શરીર પર જેટલું 17 વર્ષનો મારો એક્સપિરિયન્સ એવું કહે છે क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर हिंदी में भी हैं, तो क्या आप इसे प्लीज हिंदी में वो कर पाएंगे जिस एक्सप्लेन? तरीके से मैंने डेड बॉडी देखी है, 17 सालों का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि उस लड़की की डेड बॉडी पे कोई भी कपड़ा नहीं था, तो ये सारी चीजें उस तरफ इशारा करती है कि हाँ कुछ ना कुछ अघटित तो हुआ है, चाहे उसको मार दिया गया। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आके ये खड़ा हो जाता है कि किसी की बेटी, किसी की बहन, आज उसकी इज्जत तार तार हो गई। क्यों? क्योंकि कुछ हवसखोर इंसानों ने ये काम किया, न बल्कि काम किया, लेकिन उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। જ્યારે ન્યૂઝ વાંચતી હતી એ દરમિયાન મને એક कॉल आवे छे कि जिसमें बोला जाता है कि मेघाणी नगर में ये पूरा वाकया हुआ है। सच मानो मैं न्यूज़ बुलेटिन आधे में छोड़ के आई ये देखने के लिए कि बोला जाता है कि महिला सुरक्षित है गुजरात में। आधी रात को भी महिला निकले तो वो घर पर सही सलामत पहुंच जाती है। ये इंसिडेंट, ये लड़की सही सलामत अपने घर पहुंच पाई। ये बीइंग अ महिला, नो डाउट आई एम वेरी मच स्ट्रॉन्ग, बट इसलिए कि लग रहा है कि अब कौन किसकी रक्षा करेगा, क्योंकि अब किसी के घर में अगर पिता या भाई नहीं है तो क्या। एक महिला, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा है और मैं यहाँ पीछे रहती हूँ और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, ठीक है। यहाँ से लड़कियाँ 5 बजे के बाद तो निकल ही नहीं सकती हैं। यहाँ से ये सारा एरिया, यहाँ सब दारू पीने वाले जो रहते हैं सब बैठ जाते हैं और लड़कियाँ यहाँ से निकलती है ना, वैसे ही उनको छेड़ना स्टार्ट कर देते हैं। किसी के कपड़ों पे कमेंट, कोई बोलता है कि ये देखो ये कोई जा रहा है। लड़कियाँ तो तकरीबन 5 से 6 बजे तक के बाद बहुत पूरा बंद हो जाता है और यहाँ पे सब निकलने की कोशिश भी करते हैं। तो हमारे जहाँ रहते हैं तो क्या हम उनको बोले भी तो वो हमको ही बोलते हैं कि लड़कियों का वहाँ से निकलना सेफ नहीं है। बट क्यों? ये उनके जो दारू पीते हैं, 3-4 बार पुलिस को कॉल भी किया, सडनली मैंने भी एक बार किया था, तो पुलिस वाले यहाँ आए, उनको भगाया और फर्स्ट टाइम हमसे बोल के गए कि जब वो नहीं हटते तो आप क्यों नहीं जाते, आप ही बंद कर दो। बट हम क्यों बंद करें? और यहाँ से ये कोई मेरा अकेले का नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सी लड़कियाँ हैं जो सामने नहीं आएंगी। बोलते हैं कि है ना चेहरा आ जाता है, क्या है, कोई नहीं बोलेगा। मैंने बहुत से को बोला तो वो नहीं आएंगे सामने, बट ये फर्स्ट टाइम नहीं है और ये गलत है। मैंने ही कॉल किया था, मैम को कॉल किया था, उनको बोला था कि सामने आओ। मैं लड़की हूँ, अगर मैं खड़ी नहीं रहूँगी तो मेरे लिए कोई खड़ा नहीं रहेगा, इसलिए मैंने कॉल किया। और है ना ये जो इंसिडेंट है, ये यहाँ पे जब मैं आई थी मैंने देखा तो वहाँ पे सिर्फ 3-4 पुलिस वाले थे और कोई नहीं था। मैं एकदम देख के शॉक्ड हो गई। मेरी बॉडी है ना ऐसे कब रही है अंदर से, मैं बोल भी नहीं सक रही हूँ। बट ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा, मेरे लिए तो बहुत बुरा। और लड़कियों के लिए तो खास करके है, क्योंकि हम यहाँ मार्केट जाते हैं, आगे वो साइड कोचिंग जाते हैं तो हमको अक्सर यहीं से निकलना होता है। वहाँ से थोड़ा लंबा पड़ जाता है तो हम यहाँ से निकलते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो ड्रिंक करके बैठे रहते हैं। तो एक बार तो मैं यहाँ से निकल रही थी तो मुझे ड्रिंक करके वो छेड़ रहे थे, बोल रहे थे कि उसका पीछा करो और देखो कि कहाँ तक जाती है। बट ये गलत है। और यहाँ पे क्या आपके आसपास तब कोई भी नहीं था जब ऐसा कमेंट किया गया? लोग नहीं आपके लिए आवाज उठाते हैं? हमको ही बोलते हैं। ये आपके पीछे देखिए कितने सारे आदमी हैं जो अभी आपकी बाइट देखने को तैयार हैं, लेकिन आपके साथ में ऐसा होता है तो ये लोग नहीं खड़े होते हैं? नहीं बोलेगा मैम। और वो हमको ही उल्टा बोलते हैं कि अगर इतनी ही वो करनी है तो घर में बैठो। क्यों घर में बैठे? अगर किसी लड़की का बाप या भाई नहीं है तो उसे संभाल लेने में, ये क्या लड़की का देश नहीं है? ऐसा अभी बस ये तो प्रियंका रेड्डी का भी देख लिया, वो तो वहाँ की बात है, उनके लिए सब उन्होंने एक्शन लिया। बट यहाँ पे भी हम भी तो लड़कियाँ हैं ना, क्या पता अभी मैं अगर एक्शन नहीं लेती तो क्या पता अगली लड़की मैं होती। जी बिल्कुल, सब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अगली लड़की मैं हो सकती हूँ, क्योंकि अभी ये जो आरोपी है उन पे कोई अंकुश नहीं है। जैसे कि 2 या 3 दिन में ऐसी एकाधी घटना तो होती है। ये महिला ने, ये लड़की ने जिस तरीके से बताया कि उसको डर लग रहा है कि क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो लोग
हम जब निकलते तो हमें छेड़ते हैं। यानी पुलिस को भी पता है कि यहाँ पे कौन ड्रिंक कर रहा है, कौन दारू पी रहा है, कौन दारू का अड्डा चला रहा है, फिर भी पुलिस क्यों चुप है? क्यों चुप है पुलिस? क्यों चुप है पुलिस? यहाँ इतना है ना दारू वाले, यहाँ बाजू में स्टैंड चलता है, इसकी वजह से यहाँ कितने दारू वाले बैठते हैं। हमारी बहनें, हमारी माताएं जो यहाँ से सब्जी मार्केट यहाँ से शॉर्ट पड़ता है रास्ता, वरना तो ब्रिज पूरा क्रॉस करके जाना पड़ता है। मगर यहाँ से जाने में फिर रात को खाली 6 बज जाए तो हमको टेंशन होती है कि यहाँ से कैसे आते। हम खुद रात को सब मालूम है, पुलिस को नहीं मालूम दारू का स्टैंड चलता है यहाँ, किसको नहीं मालूम है दारू का स्टैंड चलता है। और रात को यहाँ दारू पी के बैठते हैं, शाम को इतने दारू पी के बैठते हैं, चरस है, अफीम है, नशेड़ी लोग यहाँ बैठते हैं यहाँ। पुलिस को पता है, सबको मालूम, सबको पता है मैडम, पुलिस के रहते हुए पता है, सबको पता है। हमारे देश में पुलिस के रहते हुए आप यहाँ तो illegal सब्जी भले 100 रुपए से महंगी मिले, लेकिन आप चलते हुए पुलिस वाले को 100 रुपए में खरीद सकते हैं। और दारू भी बड़ी आसानी से मिल जाएगी, जबकि यहाँ पे दारू बंदी है। घर बैठे होम डिलीवरी हो जाएगी। जिस तरीके से लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ से आती है दारू, क्यों इनको आसानी से मिल जाती है, और जब ऐसी कोई घटना होती है तब जाके ये सवाल पूछते हैं। मैम यहाँ है ना, उस दिन तो एक लड़के को चक्कू मार दिया था, खाली कुछ नहीं, उसकी जेब में मोबाइल हो या 200 रुपये या 300 रुपये, उसके पीछे यहाँ मर्डर हुआ। हमने चोर को पकड़ा भी था, पुलिस वाले को दे भी दिया, को दे दूसरे भी दिन देते तो हैं, वो दूसरे घूमने दिन लगा, यहीं बैठा था। वापस नहीं मिलेगा वो, कुछ क्या मतलब करे? वहाँ जाओगे पुलिस स्टेशन लेके सरकोट रहा तो बोल देते, बोले क्या इनके पीछे पड़ो, ये तो अभी आज फिर नशे में, इनको मारोगे कुछ भी होगा, तुम्हारे ऊपर नाम आएगा, जाने दो। उनको छोड़ के चले आते 2 दिन बाद, 1 दिन बाद। पुलिस ढाक पिछोड़ो करी रही है। पुलिस जो है वो सारी घटना में कहीं ना कहीं दोषित इसलिए लग रही है क्योंकि लोगों ने बताया कि हाँ यहाँ पे दारू बिक रहा है, चरस बिक रही है। क्यों पुलिस वहाँ पे जाके वहाँ पे रेड नहीं करती है? क्यों उन लोगों को हिरासत में नहीं ले रही है? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं कि जो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पूरे सर्कल में जो मिसिंग कॉर्नर है वो पुलिस जानती है किसने किया है, क्यों किया है। जब ऐसी घटना घटी तब जाके पता चला कि हाँ ऐसी कोई घटना घटी। प्रियंका रेड्डी आज याद आ रही है इसलिए क्योंकि ये जब घटना घटी तो उसके साथ भी यही सारी चीजें हुई थी। आपका नाम? बेटा, आपकी उम्र कितनी है? नाम मत बताइए, सिर्फ उम्र कितनी है। ओके, आपने देखा क्या हुआ? नहीं, डर लग रहा है? क्यों डर लग रहा है? वो लड़की को एक मिनट, थोड़ा आगे आ जाओ। हाँ। जोर से बोल थोड़ा। वो लड़की को आग में जला के डाला था इसलिए। तो क्यों डर लग रहा है? रात को निकलने में, शाम को निकलने में डर लगता है ना। हमारे साथ ना हो इसलिए। क्यों आपको लगता है कि आपके साथ होगा? नहीं लगता मुझे। यहाँ पे लोग दारू पी के बैठते हैं। हाँ, बोला आपने किसी को? सबको पता है। पापा ने क्या बोला आपको? बाहर मत निकलो। हम तो निकलते ही नहीं यहाँ पे। कोई सॉल्यूशन नहीं के जहाँ पे बोला जाए कि पापा ने बोला है कि नहीं बाहर निकलना है, भाई ने बोला है कि नहीं बाहर निकलना है। भाई क्यों बाहर ना निकले? क्योंकि ये हमारा भी गुजरात है, ये मेरा भी गुजरात है, इस पे मेरा भी हक है। मुझे काम होगा, मैं हर बार बाहर निकलूंगी, 10 बार बाहर निकलूंगी। कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से मैं क्यों घर में बैठी रहूं? मेरा भी हक है, महिला होने के नाते। आप यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी उम्र की बच्ची को भी देख रहे हैं यहाँ, क्योंकि रेप जैसे इंसिडेंट में ना उम्र का कोई क्राइटेरिया है, ना जात का कोई क्राइटेरिया है। हम इतने जातिवाद बन जाते हैं, इतने कट्टरवाद होते हैं, इतनी राजनीति करते हैं, लेकिन रेप जैसी घटना के लिए क्यों नहीं कोई क्राइटेरिया बनता है, कोई जात पात बनती है। कह देते हैं कि नाबालिग था इसलिए उसे इतनी सजा नहीं हुई, लेकिन जब किसी बच्ची के साथ कोई बलात्कार करता है, इस तरह का दुर्व्यवहार करता है, तब वो उम्र देख के क्यों नहीं करता? तो सजा में उम्र क्यों? और पुलिस को जब पूछा गया कि क्या इसके साथ रेप हुआ है, पुलिस का एक ही रटाया डायलॉग था, फॉरेंसिक होगा, पोस्टमार्टम होगा, तब जाके पता चलेगा। क्योंकि अब तक तो उनको एज का भी अंदाजा नहीं है, जबकि यहाँ पे जो भी लोग हैं उनको सबको पता है कि ये लड़की की उम्र क्या थी। ये लड़की अगर यहाँ की नहीं थी तो क्यों पुलिस सीसीटीवी फुटेज को नहीं देख रही है कि अगर लाश लाई गई है, जिंदा वो लड़की को लेके आए हैं, क्यों ये सारे जो पहलू है उस पे पुलिस ध्यान नहीं दे रही है? क्या पुलिस की भी कोई मदद है? पुलिस को भी पूछा गया था, लेकिन पुलिस ने कोई भी चीज कहने से मना कर दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 साल की लड़की के साथ ही ये होता है। अब यहाँ गुजरात में
जो वृद्ध होते हैं वो भी सलामत नहीं है। जी दारू पिए बैठा है तो वही माना कि हमारा जो है यही नहीं दारू ड्रेस पार्टी सब बैठा हुआ है तो हमारा लड़कियों के निपा जाओ ना कहीं नहीं वो दाड़ो हाथમાં હોય તો નીકળી નહીં કેટલું માણસ દારૂ લઈ બેઠા હોય તો દારૂ બંધ કરાવે સરકારને દારૂબંધી તો છે જ, પણ અત્યારે હાલ જે પ્રમાણે પોલીસને જાણ કરી હતી ક્યારે? અમે તો ખબર જ નહીં, અમે તો હાલ આવ્યા અમે ગયેલા હોય બરાબર, અત્યારે હાલ જ આવ્યા છે, પરંતુ હા ઇન્સિડન્ટથી વાકેફ છે. આપ જણાવશો કે અત્યારે હાલ શું પરિસ્થિતિ છે અહીંયા? हिंदी में बोलो। हिंदी में बताइए कि अभी क्या परिस्थिति है, यहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही है? यही दारू वाले बैठते रेल पाटा पे रोजीना, बच्चे निकलते और औरतें निकल नहीं सकती, छोकरियाँ निकल नहीं सकती, यही परेशानी। અહીંયા આવે ને તો એવું લાગી રહ્યું છે કે હવે એ પાછો યુગ આવી રહ્યો છે કે જેમાં દિવસ આત્મે પછી મહિલાઓ બહાર ના નીકળી શકે, કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક ઘૂંઘટ પ્રથા પણ પાછી આવશે. કેમ? કારણ કે જે પ્રમાણે મહિલાઓ બહાર નથી નીકળી શકતી. એક વ્યક્તિ મારી સાથે જોડાઈ ગયો છે. આપ જણાવશો કે અત્યારે હાલ શું તકલીફ પડી રહી છે? અમે અહીંયા રહીએ છીએ પણ છોકરીઓને બહાર નીકળવાતું નથી. આ તમે દારૂ બંધ કરાવી શકો તો તમારા માટે મોટી વસ્તુ છે. તમે દારૂ બંધ કરાવી દો તો છોકરીઓ બહાર નીકળી શકે 6 વાગ્યા પછી. એને અહીંયા લાઈટો ના ખવડાવી અને આ બધા ગાંજાવાળા એ લોકોને બંધ કરાવે. चरस गांजा पुलिस तो आवे तो बहुत हारू, पुलिस आवे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इधर जो दारू गांजे वाले सब बैठे थे, लड़कियों को निकलना बहुत मुश्किल ही पड़ जाता है. हमारे को गाय वाले हैं हम, तो भी हमारे को इधर आना वो होता है रात को, क्योंकि खुद दारू की जगह नशे में होते तो गाय बाय लेने रात को कोई आता है तो लूट लेते हैं, पैसा निकाल लेते, मोबाइल ले लेते, मारते हैं, कोई रात को निकल नहीं सकता इधर तेल पाटा. ये जब महिला बोल रही है ना तो उसकी आवाज में कंपन मुझे साफ सुनाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट लाइट बिल्कुल नहीं है. तो आरोपी जो भी उसको भी घुमा दिया है सरकार ने, यहाँ से यहाँ तक लाइट घूम रही थी वो भी बंद कर दिया है. सर क्या मालूम क्या हुआ, बंद कर दिया. नहीं तो इससे वहाँ तक लाइट जा रही थी रात को, वो भी बंद कर दिया. यहाँ अंधेरा ही रहता, नहीं तो पहले जब डाला तब उजाला ही था, पर अब घुमा दिया है. लाइट ही नहीं चल रही रात को, नहीं तो पहले नहीं थी तब चल रही थी, लाइट अभी कराओ बंद तो कर वो दिया. मेड़ पड़ा. लाइटें चल रही थी. ये महिला ने जिस तरीके से बताया यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो ये पर प्रीति जी क्या लाइट कोई सॉल्यूशन है? लाइट आ जाना भी कोई सॉल्यूशन होगा? चलो लाइट तो आप लोग भी लगा सकते हैं किसी तरह, लेकिन लाइट से क्या चीजें रेप होना बंद हो जाए तो पूरे देश में लाइट जला देते हैं? हाँ, बट अगर बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार होना लाइट से सॉल्यूशन आ जाता है, दिन दहाड़े क्या रेप नहीं होते हैं? और अब शुरू होगा कैंडल लेके चलने का सिलसिला कि हाँ हम उस महिला की या युवती की डेथ से हम दुखी है. बस ये अब शुरू होगा कैंडल लाइट. બટ બહુ થઈ ગયું હવે કેન્ડલ લઈને નીકળવાનું, એના ઉપર શોક, એના ઉપર દુઃખ વ્યક્ત કરવાનું બહુ થઈ ગયું. હવે એવું નથી લાગતું કાયદો હાથમાં લેવાની વાત હું બિલકુલ નથી કરતી, પરંતુ હા તમારે આગળ આવવું પડશે, તમારે કેવું પડશે. પોલીસ શા માટે પગલાં ના લે? પોલીસે પગલાં લેવા પડશે. જો તમે કહેશો તો પોલીસે પગલાં લેવા પડશે. હવે મીણબત્તી લઈને બહાર નીકળવાનું બહુ થઈ ગયું. किनको? आइए आंटी आइए. देखो सबसे पहले एक बात याद रखना, वो भी किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, किसी की बीवी थी या किसी की बच्ची थी. कल को ये सोच समझ के कि भाई इसके साथ ऐसा करना वो नहीं हो रहा है, कल को आप भी हो सकते हो. पुलिस चौकी आनी चाहिए, पुलिस चौकी आएगी तो सबको सुरक्षित रहेगी. हाँ, लड़की बाहर निकल सकेगी, कुछ देर हो जाए तो भी आ सकेगी. इधर पुलिस चौकी बननी चाहिए, मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ. बिल्कुल जो आप ये बोल रहे हो कि पुलिस चौकी यहाँ पे आनी चाहिए, लेकिन आरोपी को सब कुछ पता था यहाँ पे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है. स्ट्रीट लाइट नहीं है, कौन से समय में कौन नहीं. प्रीति जी जहाँ पे ये लाश जलाई गई है, क्या हम वहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से इतनी पास में पब्लिक है और वहाँ पे बच्ची की लाश को बड़े आराम से जला दिया गया और फेंक दिया गया. जी बिल्कुल सभी के सामने.
मैं आपको अब उस जगह पे लेके जा रही हूँ जहाँ पर उस बच्ची को जलाकर फेंक दिया गया। अभी 10 मिनट पहले यहाँ से पुलिस उस बच्ची की लाश को यहाँ से जली हुई लेकर गए हैं और पुलिस को और इंसानों को तब पता चला यहाँ पर कि जब उस लाश को कुत्ते खा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये घटना कितनी, मुझे ये सब बोलने में और इस लाइव में ये करने में, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे ही किसी ना किसी ज़रिए अगर किसी बच्ची को न्याय मिलता है तो इस तरह का लाइव और इस तरह से लोगों को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं है, लेकिन बच्ची को न्याय ज़रूर मिले, इसलिए ये सारी घटना, और ये मेरे बहुत पास की घटना है। तो अंदर एक डर भी बैठा हुआ है कि अगर इतनी पास ऐसी घटना घट सकती है तो क्या हम सच में इस देश को अपना कह सकते हैं, हम इस देश में सुरक्षित हैं। ये वो जगह है बेटा, यहाँ पर उस लाश को लाकर जला दिया गया, उसके पार्ट्स आप यहाँ पे, और ये पास में ही घर है, घर के जस्ट पास में लाश को जला दिया गया है। यहाँ पर हड्डी पड़ी है, આ બધા જ લોકો પાસે કેટલાક લોકો સામે આવીને તો બધાના મોં સીવાયેલા છે કેમ? કારણ કે હડ્ડિયા એક જ વસ્તુ છે, મારે શું, જ્યાં સુધી પોતાના ઘર ઉપર પોતાના કુટુંબમાં આ વસ્તુ નથી થતી ને ત્યાં સુધી લોકો ફક્ત એક જ વાક્ય કહેશે કે મારે શું, હું શું કામ કોઈ બીજાના કચડામાં પડું। આ મેન્ટાલિટી જ્યારે ખતમ થશે ને ત્યારે કોઈની બહેન કે કોઈની દીકરી આ રીતે મૃત્યુપાય હાલતમાં નહીં મળી આવે। આપણે ત્યારે જરૂર પણ નહીં પડે કે આપણે મીણબત્તી લઈને તેને ન્યાય અપાવવાની કોશિશ કરીશ, કારણ કે ન્યાય તો આજે પણ આ દેશમાં પ્રિયંકાને પણ નથી મળ્યો, નથી બીજલ જોશીને મળ્યો। આરોપીઓ પકડાય છે ને ત્યારબાદ તેઓ જામીન પર છૂટી જાય છે। જે પ્રમાણે આ લોકોએ કહ્યું તે પ્રમાણે કે આરોપીઓ પકડાયા હતા પરંતુ બીજા દિવસે જામીન ઉપર બહાર છૂટી ગયા હતા। આ બધી વસ્તુ શેની તરફ ઇશારો કરે છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક કાયદામાં એવો તો કોઈ સેન્ધ છે કે જેનો લાભ આ આરોપીઓ લઈ રહ્યા છે। નહીતર કાળી અંધારી રાતમાં આટલી બધી ફેક્ટરીની વચ્ચે લોકો આટલા બધા ભેગા થયા છે, એની વચ્ચે અહીંયા એક વ્યક્તિ, એક યુવતીને લાવીને ફેંકવામાં આવે છે। જે પ્રમાણે જોવો છો કે આ જે લાશ અહીંયા પડી હતી તેની પાછળની સાઈડમાં ઘર છે, મકાન છે કે જ્યાં લોકો રહે છે। જો આટલી બધી ઘટના ઘટી તો શું તેમને એક ચીજ પણ નહીં સંભળાઈ હોય? ચલો તે માની લીધું કે તે યુવતીની લાશ લાવવામાં આવી હતી, તો જ્યારે કોઈ પણ યુવતી 15 થી 20 વર્ષની યુવતી હોય તો તેને સળગાવવામાં આવે છે તો તે કેટલો અજવાળું, કેટલો પ્રકાશ ફેંકતું હોય છે। શું તેમને એ અજવાળું પણ નહીં દેખાયું? શા માટે તેમણે બહાર આવીને આ જોવાની તસદી ના લીધી કે બહાર શેનો પ્રકાશ છે? શા માટે અહીંયા લોકો ઊભા છે કે પછી એ પણ એવું જ વિચારતા હતા કે મારે શું, મારી દીકરી હોત તો હું બહાર ગયો હોત તો મેં ચિંતા કરી હતી, પરંતુ કોઈકની દીકરી, કોઈકની બહેન આજે નથી રહી। કોના કારણે? કેટલાક નરાધમો, કેટલાક હિંસક, કેટલાક એવા વરુ કે જે ફક્ત ને ફક્ત મહિલાઓને હાડ માંસનું એક સાધન સમજતા હોય છે, એવા લોકોના કારણે આજે કોઈકના ઘરનો દીવો ઓલવાઈ ગયો છે। ફરીથી મળીશું આ સમય આ ચેનલ પર, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર। इस तरह की घटनाएं, ये तो वो इंसिडेंट है जो बगल में हो गया और कहने को तो शब्द नहीं है, लेकिन ऐसे लाखों अनगिनत हर सेकंड में किसी एक बच्ची के साथ में इस तरह का इंसिडेंट, इस तरह की घटना घट रही है। तो ये एक और चीज़ हम लोगों को बताती है कि आज भी हमारा देश इंसान प्रधान नहीं रह गया है, जानवर प्रधान हो गया है। यहाँ इंसानों से ज़्यादा तो जानवर रहते हैं। लाश सबके सामने जल रही थी, लोग देख रहे थे, रेलवे चालू प्लेटफॉर्म है, यहाँ आसपास लोग रह रहे हैं और बच्ची को जला दिया गया। लोग ये सोचकर रह जाते हैं कि हमारे परिवार से जुड़ा हुआ इंसिडेंट नहीं है, हमारी बेटी नहीं है, तो हम क्यों आवाज़ उठाएं, हम क्यों चिंता करें। लेकिन ये ध्यान रखिए, आज भले वो आपकी बेटी, आपकी बहन, आपका अपना नहीं था, लेकिन हो सकता है ये कल को आपके परिवार के साथ हो जाए। अगर आप किसी की मदद नहीं करेंगे तो उम्मीद मत रखिएगा कल को कोई आपके लिए आवाज़ उठाएगा।
कोशिश ज़रूर रहेगी इस बच्ची को न्याय मिले। बहुत बड़े किसी सेलिब्रिटी की, किसी बहुत बड़े पहुंच वाले नेता की या किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई बच्ची नहीं थी, एक गरीब की बच्ची थी, तो शायद न्याय दिलाने में लोग नहीं आगे आएंगे। लेकिन एक महिला होने के नाते और Z+ न्यूज़ चैनल की पूरी टीम के साथ, क्योंकि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, एक श्योरिटी दी है कि हम ज़रूर इस बच्ची के लिए लड़ेंगे, तो आप सभी के साथ और सहयोग से कोशिश करेंगे इस बच्ची को न्याय ज़रूर मिले। और जो भी आसपास के लोग हैं, प्लीज़ इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। और अपने देश को, अपनी देश की बच्चियों को बचाइए, सुरक्षित रखिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने इंसान के रूप में जन्म लिया है, तो इंसान बनकर रहें तो अच्छा है, नहीं तो हम में और जानवरों में ज़्यादा फर्क नहीं रह जाएगा।